Welcome, friends, to our regular Thinking Thursday. Every Thursday, our group meets, our Zoom community group meets, and we keep inviting interesting speakers on interesting topics. And today we have Shakuntala Raniji from Jaipur. She is a well-known past life regression therapist, astrologer, and even a batch flower remedy therapist. She has been with us for a very long time now. And astrology classes is something that she's renowned for. Her basic and advanced astrology classes are really excellent. And I am so happy today to welcome her as a speaker on this group. Shakuntala is not only a friend, a student, but now a guru for me also, because I'm also learning from her astrology. So it is wonderful, I think, in life when your student becomes your guru and your guru becomes your friend. So for me, I think Shakuntala is a very important person in my life. And I think she has a beautiful and respected place in the lives of many of us on our Thinking Thursday group. So Shakuntala, welcome. And we are all waiting for you to speak on a fantastic topic which is of interest to everybody, and that is karma. So the karma theory is going to be spoken about by Shakuntala. And as we all know, Shakuntala is an ace as far as making PowerPoint presentations go. She's been a computer teacher for God knows for maybe 20, 25 years of her life. So she's our go-to person for anything that has to do with computers. So Shakuntala, welcome again. Thank you so much, मैम, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और उससे ज्यादा अच्छा इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म आपने हम सबको दिया है, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इतने सारे लवली सोल्स. सो वी फील लकी आपके इस प्लेटफॉर्म में जगह देने के लिए, टॉक के लिए, टाइम देने के लिए. थैंक यू सो मच. मैं शुरू कर देती हूँ. सो द टॉपिक इज कर्मा थ्योरी, और इस टॉपिक को करने के लिए आई हैव यूज्ड टू मेन टेक्स्ट. एक तत्वबोध एंड सेकंड इज भगवद गीता. भगवद गीता साधक संजीवनी, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन चैप्टर 18 के 12th श्लोक का डिस्क्रिप्शन में काफी अच्छा मिलता है. सो आई हैव टेकन फ्रॉम देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्मा क्या है? कितने टाइप के कर्मास होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्मास. वन इज प्रेजेंट कर्मास. अब इसके कई नाम होते हैं. क्रियमाण कर्मा भी होता है और आगामी कर्मा भी होता है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ. ओके. एंड देन संचित कर्मा एंड प्रारब्ध कर्मा. सो ये तीनों टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं. नाउ व्हाट इज कर्मा? आप लोग में से कोई अनम्यूट करके बता सकता है व्हाट इज कर्मा? कर्मा क्या है? आप क्या सोचते हैं कि क्या है कर्मा? Shakuntala ji, to my knowledge, if you have done good deeds, you have good karma. If you have done bad deeds, you want the same experience to happen to you. Good. So accept it peacefully. So I'm learning that. to you 2 types of karma. Okay, good and bad. Fine. Deeds. You said deeds. Anyone else? Karma क्या है? What do you think? It's like what you do, the fruit you get what you are doing it actually. तो जो काम आप कर रहे हो उसका फल कर्मा है. वो कर्म फल है. ठीक है, काम जो आप कर रहे हो वो कर्म. चलिए, और कोई? हरलीन? एक्शंस, राइट. इमोशन एंड एक्शन. ये बहुत अच्छा डायलॉग है. वेरी नाइस. एंड हरलीन, आपने हैंड रेज किया है, आप भी बता सकते हैं. So, based on what I have read through channelings, कि karma is defined as something somewhere that you feel unbalanced. मतलब there is some unbalance that your soul feels and wants to experience,
that can become a karma for you. गुड गुड दिस इज थोड़ा आगे जाके इन डेप्थ आंसर आपने बोला सो फैंटास्टिक यस नमिता देन विल कंटिन्यू विद द I think प्रेजेंटेशन I will take ahead that point of emotion ahead. I mean, karma is just any action, consciously, unconsciously, either we do or it happens on its own, and the thought process towards self or anyone else. नाइस गुड यस राहुल क्विकली Residues of our action, or the residues, the results of our action. yes good desires also okay let us quickly come back we think the deeds जो सब कह रहे थे so action fine one thing then intentions जो हमने काम किए नहीं है जिसके बारे में सिर्फ मन में सोचा वो भी कर्म है देन स्पीच हम मुंह से जो भी बोलते हैं वो भी कर्म है देन अभी और आगे है व्हाट यू वॉच ऑन टीवी व्हाट यू वॉच ऑन यूट्यूब ये भी हमारे कर्म इनके भी संस्कार बनते हैं देन व्हाट यू लिसन मेनली कई बार होता है नहीं हम तो कोई बुराई नहीं कर रहे थे ठीक है वो तो अगला बंदा बुराई कर रहा था इसलिए हमको सुनना पड़ा if you are not interested in listening any such rubbish thing अगला बंदा बोलना बंद कर देगा so it is our interest हम जो भी good और bad सुनना चाहते हैं so all these collectively make karma it is not only your actions but your intentions your speech everything तो the simple language में it is शरीर वाणी और मन से की जाने वाली क्रियाएं कर्म है एक्शंस परफॉर्म विद बॉडी स्पीच एंड माइंड इंटेलेक्ट आर कॉल्ड कर्मा आपने कुछ बोला भी नहीं लेकिन मन में सोच लिया कितना सोचते हैं किसी से गुस्सा हो गए किसी ने बुरा भला कह दिया वो मन में चल रहा है वो भी कर्मा है okay what we think कि एक बार कोई कर्मा हो गया तो वो finished after the completion of the karma it appears that the karma has been destroyed but it is not destroyed this is something important we are going to study or discuss today okay now जैसे हम मूवीज देखते हैं और मूवी में कई बार कोई ऐसे दिखाते हैं मर्डर कर दिया और उसके बाद में सब कुछ साफ सुफ करके नीट एंड क्लीन चलो हो गया कर्मा फिनिश डिस्ट्रॉयड नो इट्स नॉट देयर इन अ रियल लाइफ में नहीं होता मूवी में पकड़ा जाए नहीं पकड़ा जाए वी डोंट नो बट देयर इज अ परमानेंट रिकॉर्ड जहाँ पे हर इस चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है व्हाट इज दैट that is our अंतःकरण जैसे कि टेप रिकॉर्डर में हम जो कुछ भी बोलते हैं वो स्टोर हो जाता है ठीक इसी तरह से हमारे सारे के सारे कर्म हमारे इस अंतःकरण इनर इक्विपमेंट विच इज मन बुद्धि चित्त अहंकार माइंड इंटेलेक्ट चित्तम एंड ईगो इनर ईगो इसमें सारा हमारा स्टोर हो जाता है ऑल राइट Just as the words spoken that recorded on a tape recorder, similarly all our actions remain minutely recorded in the chittam, that is अंतःकरण अंतःकरण में 4 होते हैं उसमें से एक पार्ट है चित्तम आई थिंक द टर्म चिप मोबाइल में चिप है ठीक है दैट चिप उस चिप में हम बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं मेमोरी चिप है वो चिप वर्ड भी कहीं संस्कृत के चित्तम से ही लिया हुआ लग रहा है ये भी वही स्टोरेज का काम करता है और ये मोबाइल की चिप भी वही स्टोरेज का काम करती है ओके दीज एक्शंस कवर द सोल एंड क्रिएट इग्नोरेंस यही कर्म हमको बांध देते हैं हमारी सोल को हमारी आत्मा को ढक लेते हैं और हमारे अंदर इग्नोरेंस अज्ञान किस चीज का अज्ञान वी आर नॉट अवेयर ऑफ अबाउट आवर ओन सेल्फ जो इसीलिए तो कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन हम हमारी आत्मा से ही कनेक्ट नहीं कर पाते
वो ही कवरिंग कौन करता है, ये इग्नोरेंस होती है ड्यू टू दिस कर्मा। जब कर्मा पूरे प्योर और कंप्लीट हो जाएंगे तो इट विल बी ऑल डन। अभी अभी किसी ने आप में से आंसर भी दिया था ब्यूटीफुल, कि हम इस धरती पे आते ही इस बैलेंस ऑफ कर्मा के लिए। सो आप सभी लोगों की जो भी डेफिनेशन थी वो सब करेक्ट थी। नाउ अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, जो ज्ञानी होता है, सेल्फ रियलाइज्ड जिसका अपनी आत्मा से, आत्मा इन द सेंस परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। एक फोन लगाया या एक ध्यान में बैठे फोन लगाया, दे आर इन ट्यून, वो डायरेक्ट उनका भगवान से बात चल रही है, ठीक है। दे ऑल्सो परफॉर्म एक्शंस, बट हिज एक्शंस डू नॉट पुट इम्प्रेशन और संस्कारा इन चित्तम, दैट इज अंतःकरण। दिस इज द डिफरेंस। एक ज्ञानी पुरुष और हमारे जैसे कॉमन मैन में एक फर्क होता है। देन हु इज द ज्ञानी, ये क्वेश्चन आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पुराना जो ज्ञानी की पिक्चर मुझे मिली है वो लॉर्ड बुद्धा है, और आज बुद्ध पूर्णिमा है, विच इज फैंटास्टिक जस्ट। सो ये सब ज्ञानी पुरुष हैं, और इनकी डेट्स, इनका जो भी टाइमलाइन था वो दिया हुआ है। दीज आर लिबरेटेड व्हाइल लिविंग। ओके, मोक्ष प्राप्ति मरने के बाद नहीं होती, जीवन के रहते रहते हो जाती है। द पर्सन हु हैज गेन्ड सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइज्ड सोल। तो सबसे पुराने ये भगवान बुद्धा की है, फिर आदि शंकराचार्य जी हैं, ये श्यामाचरण लाहिड़ी हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, और ये रमन्ना महर्षि हैं। देन स्वामी विवेकानंद है, स्वामी शिवानंद है, देन साईं बाबा है, युक्तेश्वर गिरी है, परमहंस योगानंद जी है, और चिन्मय मिशन के स्वामी चिन्मयानंद। तो ये सब सब ज्ञानी पुरुष, इनके कर्म जो है ना वो संस्कार नहीं डालते। संस्कार किसके डालते हैं? हमारे जैसे कॉमन मैन के। ओके, सो कर्म, कैन वी लिव विदाउट एक्शंस? क्या हम रह सकते हैं बिना कर्म के? Even to keep the body alive, one has to act. नहीं रह सकते। Each action, अब हर कोई कर्म जो हमारा होगा, that produces results. आप में से अभी जो कुछ लोग कर्म की डेफिनेशन बता रहे थे, तो कहीं इनडायरेक्टली आप लोग कर्म फल की बात कर रहे थे, which is also true. कर्म की वजह से हमको कर्म फल मिलते हैं या स्टोर्ड होते हैं, उसी पे हम बात करते हैं। तो अभी ये कि क्या हम बिना कर्म करके रह सकते हैं, इसको देखने के लिए हम भगवद गीता की ये स्लाइड देखते हैं। चैप्टर 3 का वर्स 5 यही है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। Surely none can ever remain inactive, even for a moment, even for a moment. For everyone is helplessly driven to action by modes of प्रकृति। प्रकृति के त्रिगुण है, सत्व, रजो एंड तमो। किसी न किसी गुण में बंधा हुआ हम कर्म करते ही रहते हैं और उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। Next, first, please mute yourself. Okay, first वाला जो था, which is sometimes we call it आगामी कर्मा और क्रियमान कर्मा. Let us summarize it like a present कर्मा. ये हमारे आज के जो हम कर्म करते हैं वो है. Now, both are correct. क्रियमान कर्मा भी correct है, आगामी कर्म भी correct है. What is क्रियमान कर्मा? These are done by common men. हमारे जैसे लोग जो आज के टाइम में प्रेजेंट कर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रियमान कर्म, और इसी पे हम थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे। और आगामी कर्म वही प्रेजेंट कर्म किसके? दीज आर डन बाय सेल्फ रियलाइज्ड पीपल, जो ज्ञानी पुरुष हैं। पीछे जो हमने स्लाइड्स देखी थी वो इसीलिए देखी थी, वो जो ज्ञानी पुरुष हैं वो जो आज कर्म करते हैं वो होते हैं आगामी कर्म, बिकॉज
उनके लिए वो कर्मा जो है ना, वो संस्कार नहीं डालते अंत्यकरण में, बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड टू देयर कर्मा, दे डोंट हैव दैट डूअरशिप इशू। हमको है ये काम मैंने किया, ये मैंने ऐसे किया, वो किया। सो हमारे कर्म फल हमको बांधते रहते, और ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। एनीवे, लेट अस फोकस मोर ऑन क्रियमाण कर्मा, दैट इज प्रेजेंट कर्मा। तो जो प्रेजेंट कर्मा है, वी हैव कंट्रोल ओवर इट। दिस इज द पार्ट वेयर वी हैव फ्री विल। कुछ लोग बहुत कहते हैं कि नहीं, ये तो कर्मा भाग्य है, ये तो सब गिवन है, तो हम क्या कर सकते। बट ऐसा सारा नहीं है। भगवान ने नहीं, सुन लो अच्छी सी बात, चल। आ, भगवान ने हमको फ्री विल दी है, ओके, और इसीलिए वो हम कहाँ शो कर सकते हैं, क्रियमाण कर्म में, प्रेजेंट कर्मस में, और इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। क्रियमाण कर्मस आर द बेसिस ऑफ संचित कर्मा एंड प्रारब्ध कर्मा। इसके बाद में जो सेकंड एंड थर्ड कर्मा टाइप्स हैं, दैट इज संचित कर्मा और प्रारब्ध कर्मा, उनको भी हम बात करेंगे। बट उनका बेसिस है क्रियमाण कर्मा। तो जो फ्री विल हमें मिल रही है, जो काम आज हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसका जो कर्म फल है वो आगे जा करके हमारे ही संचित कर्मों में ऐड होएगा, और हमारे ही आगे आने वाले प्रारब्ध कर्मों में ऐड होगा, उसका बेसिस बनेगा। ठीक है, तो वी हैव नो कंट्रोल ओवर द प्रारब्ध कर्मा। ये अभी जो थर्ड टाइप का कर्मा हम पढ़ेंगे, दैट इज प्रारब्ध कर्मा, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जो कहते हैं ना भाग्य में लिखा है वो मिलेगा, वो एक पार्ट है, बट वो कभी हम ही नहीं बनाया था। इसी बात पे हम आते हैं, और क्रियमाण कर्मा आर इन आर कंट्रोल। ओके, नाउ लेट अस थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं क्रियमाण कर्मा के। क्रियमाण कर्मा विच इज द एक्शंस ऑफ द प्रेजेंट, ये टू टाइप्स के हो सकते हैं, प्योर कर्मा और इम्प्योर कर्मा। प्योर कर्मा कौन से होते हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस। प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस मीन्स जो शास्त्रोक्त कर्म, ऐसे कर्म जो शास्त्र कहते हैं कि आप कर सको, जो राइटिजियस एक्शंस है, जो धर्मानुसार है, those karma are known as pure karma, whereas there are certain karmas which are impure karma, जो शास्त्र के विरुद्ध है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सच बोलना, दैट इज अ प्योर कर्मा, और झूठ बोलना, दैट इज इम्प्योर कर्मा। आगे हम और देखेंगे। Now both pure and impure क्रियमाण कर्मा, इनके फिर फर्दर टू पोर्शन है। दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडे। वन इज जो जो भी प्योर कर्म किया या इम्प्योर है तो क्रियमाण कर्म जो हम आज कर रहे हैं, वो कर्म का कुछ पोर्शन का हमको फ्रूट मिलता है, इमीडिएटली फ्रूट मिलता है, और कुछ उन कर्मों का संस्कार ऐड होते हैं। ओके, कुछ का जो हमको फ्रूट मिल जाएगा, जिसको एक पार्ट होता है जिसको फलंश कहते हैं, और दूसरा पार्ट इज जिसके इम्प्रेशंस पड़ते, जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि ज्ञानी पुरुष के इम्प्रेशंस नहीं पड़ते। कहाँ नहीं पड़ते, ये इम्प्रेशन किसी दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने वाले इम्प्रेशन नहीं है, ये नन अदर देन हमारे खुद के अंतःकरण में जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और जो चित्तम पार्ट है उसमें, वहां हमारे रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारे अंदर एक चिप है, गॉड मेड चिप है, और वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। आप बोलोगे फिजिकल फॉर्म कहाँ है, ऐसी चिप, मोबाइल वाली चिप नहीं है। मोबाइल वाली चिप तो हमारे अंतःकरण के चिप का कॉपी है, आप ऐसे समझ सकते हैं। वहां पे स्टोर होते हैं, वहां पे इम्प्रेशंस डलते हैं, दोज आर नोन एज संस्कार। संस्कार को हम बाद में आएंगे, पहले देखते हैं फल अंश, जिनके फ्रूट मिलते हैं। तो कोई भी कर्म अभी आज हम कर रहे हैं, उसके फ्रूट हमको मिलते हैं। कैसे, कुछ फ्रूट सीन है और कुछ अनसीन। कुछ फल हमें इमीडिएट हमको दिखते हैं,
और कुछ नहीं दिखते हैं। ये सीन है अनसीन। अब सीन में भी फिर दो हैं, अनसीन को हम बाद में लेंगे, पहले हम सीन को देखते हैं। सीन में कुछ रिजल्ट्स इमीडिएट मिल जाते हैं और कुछ हमको बाद में मिलते हैं। इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बट एक बार अनसीन के भी देख लेते हैं। अनसीन के भी दो टाइप हैं। एक के रिजल्ट्स हमको यहाँ इस लोक में मिल जाएंगे, इसी अर्थ पे, और कुछ आगे मिलेंगे स्वर्ग में, बाहर स्वर्ग में, नरक में, या इस वर्ल्ड से, भूलोक से परलोक में जब हम कहीं जाएंगे तो वहां पे हमको रिजल्ट मिलेंगे। तो दीज आर हर कर्म के फल हैं, फ्रूट हैं। कुछ सीन है, कुछ अनसीन है। सीन में से कुछ इमीडिएट हैं, कुछ बाद में मिलेंगे। अनसीन में से कुछ इस लोक में मिलेंगे और कुछ हमारे बाद में मिलेंगे। फर्दर ये जो प्योर और इम्प्योर क्रियमाण कर्मा है, इनके जो संस्कार अंश है, इनके भी टू पार्ट्स हैं। एक प्योर के प्योर संस्कार होंगे और इम्प्योर के इम्प्योर संस्कार होंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। लेट अस फर्स्ट फोकस हियर। ये सीन और इमीडिएट और फ्यूचर, ये क्या है? अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। हमने खाना खाया, सिंपल, एक टेस्टफुल हेल्दी फूड खाया, ठीक है, ये एक कर्म हुआ। इसका सीन इमीडिएट रिजल्ट क्या है? इमीडिएट सीन फ्रूट ऑफ क्रियमाण कर्मा क्या है? as the immediate fruit of tasteful food is that it satisfies hunger. आपने खाना खाया, आपको भूख लगी थी, आपकी भूख शांत हुई, डर, ये इमीडिएट। बट इसका एक फ्यूचर भी है। सीन ही रिजल्ट है, फ्यूचर रिजल्ट भी है। फ्यूचर रिजल्ट क्या है? खाना खाने से क्या होगा आपको? its fruit in future is that it gives strength to the body. बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है मैंने। हम रोज खाना खाते हैं, दिन में 2 बार 3 बार खाना खाते हैं। एक इमीडिएट सीन रिजल्ट, हमारी हंगर सेटिस्फाई हो जाती है, और एक लॉन्ग रन में, फ्यूचर में ये है, इससे हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, हेल्दी रहती है बॉडी। हेल्दी फूड खाएंगे, हेल्दी रहेगी। ये एक एक पार्ट। अनदर थिंग इज, एक कर्म ये भी हो सकता है हम कुछ अनहेल्दी फूड खाएं, काफी चटपटा, मसाले वाला, मिर्ची वाला, ठीक है, ये थोड़ा शुभ कर्म में आ जाएगा, वो थोड़ा अशुभ कर्म में आ जाएगा। वो खाया तो क्या हुआ, हमारा जो टेस्ट, जो हमको इमीडिएटली जो हमको सेटिस्फाई करना था, चटपटा खाने का आदर है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मिर्ची है, आंखों में से पानी भी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। ये एक इमीडिएट सीन रिजल्ट हुआ। फ्यूचर उसका रिजल्ट क्या होगा? दैट कैन, वो थोड़ा सा अनहेल्दी है, चटपटा है बट अनहेल्दी है, तो दैट कैन कॉज डिजीज इन आवर बॉडी। सो दीज आर नाउ अनसीन फ्रूट। ये जो यहाँ पे हम देख रहे थे, प्योर और इम्प्योर क्रियमाण कर्मा के जो फ्रूट्स हैं, जो फल अंश हैं, उनमें जो अनसीन पार्ट है, अनसीन पार्ट है, कुछ इस लोक में मिलता है, कुछ आगे मिलता है। वो क्या है, उनको देखते हैं, उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स। अनसीन फ्रूट कैन आइदर बी रीड हियर और हियर आफ्टर, इस लोक में या परलोक में, कहीं पे भी मिल सकता है। अब जैसे कि ये पुराने जमाने का बुक में से लिया, भगवद गीता में से, तो एक्ट्स ऑफ लाइक सेक्रीफाइस, गिफ्ट्स, पिनन्स, पिलग्रिमेज, चैंटिंग एटसेट्रा। तो अभी क्या है, हम लोग जप करते हैं, मंत्र करते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे वो यही बताते हैं, या हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, इसका फ्रूट मिलते हैं हमको, ठीक है। और इसका क्या हमको रिजल्ट मिलता है, ठीक है, इससे जो भी आपके प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन गेट मनी एटसेट्रा, रिचेस, सन्स, प्रेज, ऑनर एटसेट्रा, जो भी मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं हमको, वो मिल जाते हैं। तो ये तो इस लोक में मिल गए, आपने अच्छा काम किया, जब तक ये सब राइटिजियस रिलीजन वाले काम कर, आपको यहाँ पे इनके फ्रूट मिल गए। और फिर इनके इनके कुछ रिजल्ट यहाँ मिल गए और कुछ
बाद में भी मिल सकते हैं कि ऐसे अच्छे शुभ कर्म करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है इस लोक के बाद। सो हियर आफ्टर इन द अटेनमेंट ऑफ हेवन, ये आपने अच्छे काम किए, ये अच्छे रिजल्ट हो गए। तो हर काम के यहाँ पे भी रिजल्ट मिलते हैं और बाद में भी मिलते हैं, एंड दीज आर इमीडिएटली सीन रिजल्ट्स नहीं है, ठीक है, दीज आर अनसीन। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें पता ही नहीं होता कब मिलते हैं, बट ये मिलते हैं। तो आज के जो हम कर्म कर रहे हैं उनके रिजल्ट परलौकिक हियर आफ्टर मरने के बाद में भी हमें मिल सकते हैं, और इवन दूसरे लोकों में भी मिल सकते हैं, स्वर्ग में, नरक में, जो भी। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हमने कोई इविल एक्शन किया है, बिलीव मी, अगर हम अपनी पास्ट लाइफ देखेंगे और आज के टाइम में, जस्ट ट्रस्ट में, आज के टाइम में इफ यू आर फेसिंग relationship issues, if you are facing sudden financial loss, suddenly जॉब चले जाना, दो दो साल तक जॉब नहीं मिलना, if you are really facing that, believe me, in your past we have done something like this for sure। और जिन्होंने पास्ट लाइफ देखी हैं वो एग्री करेंगे। तो अगर हमने इस तरीके के, आज के टाइम में हम इनको नहीं मानते कि हम ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन किसी पूर्व जीवन में हमने थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर ये सब करे हुए हो सकते हैं। सो इन दैट फॉर्म ऑफ अगर ऐसे एक्शन करे हैं तो इस लाइफ में हमको उसका मिल सकता है, फाइन भरना पड़ सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, एग्जीक्यूशन तक भी हो सकता है। ये सब रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये तो इस लोक में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी अगर उनका, हमारे पास यहाँ हमारे कर्मों का नापतोल नहीं है। सपोज आपने चोरी करी, चोरी करने का आपको 2-3 साल की सजा होनी थी, आपने जेल में 2-3 साल की सजा काट ली और आप बाहर आ गए, लेकिन भगवान का जो रिकॉर्ड है वहाँ उनका नापतोल एकदम करेक्ट चलता है, और उनको लगता है कि ये नहीं, ये पूरी सजा नहीं काटी है, इसको 1-2 महीने की और सजा मिलनी चाहिए थी, वो यहाँ नहीं मिली, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी और वो आफ्टर दैट आपको मिलेगी। और वो क्या होता है, नेक्स्ट बर्थ जब कभी हमारा होता है, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ह्यूमन बॉडी, समटाइम्स अगर बहुत ज्यादा इविल है तो वी मे गेट इवन डिफरेंट बॉडीज लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, क्रीपर्स, ये सब भी मिल सकता है, या नरक में भी जाना पड़ सकता है। ये सब भी ये कर्मों के फल हो सकते हैं। ओके, अब हम इसके सेकंड पोर्शन में आ रहे हैं, संस्कार अंश। ये तो फ्रूट मिल गए, ये तो फ्रूट मिल गए जैसे तैसे, यहाँ वहां, इस लोक में, उस लोक में। अब ये संस्कार अंश एक वो पोर्शन है जिसके बारे में बहुत कम बोला जाता है, बहुत कम हम समझते हैं। इसको थोड़ा देखते हैं कि जो आज हम काम कर रहे हैं, प्योर इम्प्योर वॉटेवर, इसके जो संस्कार होते हैं वो कैसे इम्पैक्ट डालते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो संस्कार अंश जो क्रियमान कर्मा के हैं, द प्रेजेंट एक्शंस लीव 2 kind of impressions, pure and impure। okay, prescribed actions leave pure and holy impressions। अगर हम शास्त्रोक्त काम कर रहे हैं, धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो प्योर एंड होली इम्प्रेशंस पड़ेंगे, और अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली अनहोली इम्प्रेशंस पड़ेंगे। नाउ इससे होता क्या है, इम्प्रेशन पढ़ने से, इम्प्रेशन पढ़कर रहे हैं, क्लियर है, अंतःकरण में पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ इस इम्प्रेशन से होता क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज इम्प्रेशंस फॉर्म अ मैन्स नेचर, हैबिट, जिसको कहते हैं कि स्वभाव, प्रकृति, आदत, ये फॉर्म करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर हम कोई बुरा काम कर रहे हैं तो इससे अगर बुरे इंप्रेशंस पड़ गए हमारे अंतःकरण में, तो अगला जन्म जब हमको मिलेगा, रिमेम्बर दीज क्रियामान कर्मा आर द बेसिस ऑफ संचित कर्मा एंड प्रारब्ध कर्मा, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये, और यह हमारी फ्री विल है, हमारे हाथ में हम कैसा काम करें। ठीक है, अगर अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में जब हमारा को जो भी बॉडी मिलेगा उसमें हमारा स्वभाव भी अच्छा होगा, प्रकृति। कई बार हम देखते हैं इस आदमी की तो आदत ही ऐसी है, इस आदमी को तो ड्रिंकिंग की लत लग गई,
इसमें ये बुरी बुरी आदत है, वो कहाँ से लगी, एंड हेल्पलेसली वो छोड़ भी नहीं पाते, कई बार छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ पाते। क्यों? उनके अंतःकरण में इंप्रेशन, संस्कार पीछे से बने हुए, इसलिए। तो बिवेयर ऑफ, जब भी हम कोई कर्म करें, when impure impressions are rooted out, अगर किसी के सारे impure impressions खत्म हो जाते हैं, and man's nature become pure and holy। यही काम हमें करना है, हमको अपने हमारे एक्शंस प्योरिफाइड करके हमारा स्वभाव इस जन्म में भी प्योरिफाई करके प्योरिटी ऑफ माइंड लाना है, और आगे के लिए भी संस्कार प्योर डालने। ओके, अब इसमें एक वर्ड्स आती है भगवद गीता में, 18 चैप्टर का 16 श्लोक है, वो इसी इम्प्रेशंस की बात कर रहे हैं लॉर्ड कृष्ण अर्जुन से, कि हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, अर्जुन कह रहे हैं ना मैं नहीं लड़ूंगा, उसको भी तू अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करे, हेल्पलेसली तुम करोगे। स्वाभाविक, ये स्वाभाविक जो स्वभाव है ना, दैट ह्यूमन नेचर, उसकी हैबिट, प्रकृति, आदत, इंप्रेशन, ये पीछे से आए हैं, ऐसा लॉर्ड कृष्ण कह रहे हैं। दैट एक्शन टू विच यू आर नॉट विलिंग टू अंडरटेक थ्रू इग्नोरेंस, यू विल परफॉर्म bound by your own duty, born of your own nature। क्योंकि तुम, इसका रीजन क्या है, अर्जुन ने जन्म कैसे घर परिवार में लिया, वो इम्प्रेशन के कारण मिलता है। किस घर परिवार में आपको जन्म मिले, किस बॉडी में आपको जन्म मिले, ठीक है। तो अगर अर्जुन ने जन्म लिया है क्षत्रिय के घर में, तो उसको उसी तरीके का काम करना पड़ेगा हेल्पलेसली, क्योंकि क्षत्रिय का मिला है, वो पीछे के कोई बीज पड़े हुए इसलिए मिला है, और अभी उसको अपना ड्यूटी वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो स्वभाव है वो हमारे चित्त में स्टोर्ड पुराने जन्म के संस्कारों की वजह से बनता है। ओके, फिर फ्री विल का क्या? अभी तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा ने कह दिया तू ना चाहेगा तो भी तुझे करना पड़ेगा, स्वभाव से बंधा हुआ है, हेल्पलेसली यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो फिर फ्री विल क्या? अर्जुन तो नहीं करना चाहता, कि इतना खून खराबा नहीं करना चाहता, तो फ्री विल का क्या हुआ? एक तो नेचर हो गई, एक फ्री विल, इसको भी बहुत अच्छे से बताया गया है। द नेचर, दैट इज द हैबिट विच इज फॉर्म्ड बाय इंप्रेशन ऑफ द पास्ट एक्शंस, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, and this cannot be easily rooted out, बदल तो नहीं सकते। And what's the role of free will? And what is the role of this presentation? फालतू टाइम पास, यस नो, हंस लो थोड़ा, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, हाँ हाँ, nice. good, 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 good. Okay, now, what's the role of free will? God has given a man power of to wipe out these impure part. He is free to make his nature pure by wiping out attachment and aversion। बार बार भगवद गीता में राग द्वेष, क्योंकि यही हमारी प्रॉब्लम का, सारी प्रॉब्लम का यही जड़ है, अटैचमेंट एंड अवर्जन। ये इसको हमको इस पे धीरे धीरे काम करना है। इस पे हम काम करेंगे तो हमारा फ्री विल का रोल बढ़ जाएगा। यह हमारी फ्री विल है कि हम इस पे काम करके हम प्योरिटी ला सकते। अ मैन इज फ्री, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हियर, अ मैन इज फ्री टू प्योरिफाई हिज नेचर, वाइल पर्सनल प्योर नेचर जो पीछे से आया, जैसे कि अर्जुन क्षत्रिय है, ये वाला जो नेचर पीछे से आया है, वो इज इफेक्टिव इन एंगेजिंग ए मैन इन एक्शंस। इस जीवन में उसे क्या काम करना है वो उसमें बिजी रखेगा। उसका जो नेचर है, ये बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, ठीक है, एक आर्मी मैन फाइट करेगा, ठीक है, एक ब्राह्मण ऐसे लेक्चर लेगा, टीच करेगा,
और जो लेबर क्लास है उसको वो जो भी काम कर रहे हैं वो तो उसके नेचर से उसको मिली है। लेकिन इन एक्शन अकॉर्डिंग टू हिज कास्ट, कास्ट मीन्स द बर्थ एनवायरनमेंट, जैसा इंडिया में है जन्म लिया है तो इंडिया के जैसे एनवायरनमेंट में वो काम करेगा, और फॉरेन में जन्म लिया है तो फॉरेन का एनवायरनमेंट में वो होगा। वो सब नेचर से मिला है, लेकिन वो काम में कितनी प्योरिटी लाए, अपने नेचर को कितना प्योरीफाई करे, ये तो उसके हाथ में है। सो दोनों का रोल अपना अपना है और कोई रोल कम नहीं है। पीछे से जो मिला है वो अपना रोल कर रहा है, लेकिन हमारे पास अभी भी पावर है, हमारे पास अभी भी रिमोट कंट्रोल है कि हम ये अटैचमेंट और अवर्जन, राग द्वेष को दूर करके और अपने आप को प्योरीफाई करते रहे। हमारी सारी प्रॉब्लम है ही इसी की वजह से, टू मच ऑफ अटैचमेंट एंड टू मच ऑफ हेट्रेडनेस। ओके ना, अर्जुन का धर्म क्या था? वो क्षत्रिय में जन्म लिया, ये उसका पीछे से आया हुआ नेचर है। ओके, ये जो नेचर है वो इम्प्रेशन से आया हुआ नेचर है। सो ही गॉट इट बाय बर्थ, उसको ये इससे मिला। तो इसीलिए क्या, इसीलिए भी भगवत गीता में बार बार कहा है कि स्वधर्म इज इम्पोर्टेंट। आपको जो रोल मिला है, कुछ रोल मिला है बाय बर्थ, डू दैट। ओके, लेकिन फ्री विल क्या है? आप बिल्कुल प्योरीफाई माइंड से अपने नेचर को प्योरिटी में ला करके प्योरिफाइड रूप में काम करते रहो, वो आपकी फ्री विल है। और वो फिर आगे के लिए अच्छे संस्कार डालेंगी, या अगर आप डिटैच हो सकते हो तो संस्कार न भी डालेगी। अब ये फर्स्ट जो पॉइंट था ना, जिसमें प्रेजेंट कर्मा के हम बात कर रहे थे, तो क्रियमान कर्मा का हमने बात किया, दैट इज फॉर अस पीपल लाइक अस कॉमन मैन। अब ये एक और टर्म आती है इसमें, आगामी कर्म। ये बेसिकली ये टर्म यूज होती है ज्ञानियों के लिए, तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी कवर करना चाहती हूँ। ज्ञानी का अभी हमने देख लिया, तो द रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस गुड और बैड परफॉर्म्ड बाय द बॉडी ऑफ द रियलाइज्ड सोल, ज्ञानी। क्योंकि वो खुद तो इन्वॉल्व होते ही नहीं, उनका शरीर है, अब जब तक वो धरती पे रहेंगे कुछ काम तो करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर द डॉन ऑफ नॉलेज आर नोन एज आगामी, वो जो काम करते हैं उनके आगामी कर्म। ठीक है, अब ये आगामी कर्म का होता क्या है? A wise man not being identified with his body has no sense of doership। वो doership नहीं लेता है, मैंने ये काम किया नहीं किया, उनको है ही नहीं, उनको दे आर सेल्फ रियलाइज, उनको मालूम है। Yet may appear to be performing actions through his body, फिर भी वो कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, he is pure, he is the pure self, free from actions। तो उसको ये कर्म नहीं लगेंगे, उसको ये कर्म नहीं लगेंगे, तो ये कर्म जाएंगे कहाँ? कर्मों की एक थ्योरी है, वो फ्री नहीं जाती, फ्री नहीं जाती। इसीलिए हमको पढ़ना जरूरी है ये। अभी हम ज्ञानी नहीं है, लेकिन हमको ये जानना जरूरी है। द रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस डिपेंड अपॉन द इंटेंशन बी। ऐसे तो ज्ञानी पुरुष कभी कोई बैड इंटेंशन से कुछ काम ही नहीं करेंगे, तो उनके जनरली पुण्य होते हैं। पाप अगर उनके पीछे से संचित में कुछ पड़े हैं तो वो पाप हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज, वो कम करते हैं, वो उनको टच नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा बैड इंटेंशन और पाप कर्म कोई ज्ञानी क्या करेगा? कोई किसी पे गुस्सा कर देगा बस, इससे ज्यादा वो कोई बुरा काम नहीं करेगा। तो गुड एंड एक्शन से तो पीसफुल लाइफ मिलती है, ये कर्म का थ्योरी है। बट देर आर नो गुड और बैड एक्शंस फॉर अ वाइज मैन एज ही हैज नो सेंस ऑफ डूअरशिप। ये तो क्लियर हो गया। तो ये कर्म जाएंगे कहाँ, इसको हम बाद में देखेंगे आफ्टर सम टाइम। अभी हम सेकंड ले लेते हैं, संचित कर्म। ठीक है, और इन शॉर्ट इफ आई से, जो हमारे जैसा कॉमन मैन ज्ञानी पुरुष का प्रेस करेगा या उनके बारे में अच्छी बात करेगा, तो उनके गुड डीड्स के फल उनको मिलेंगे, उनके पुण्य फल हम उनको मिलेंगे। और जो लोग ऐसे लोगों की बुराई करते हैं, तो इनके अगर कुछ कोई भी बैड डीड्स या पाप रहे हैं वो हमको मिलेंगे, जो बुराई करते। तो वी हैव टू बी केयरफुल जब भी हम किसी बड़े ज्ञानी वानी की निंदा अगर करते हैं, तो वी हैव टू केयर। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक नेक्स्ट इज संचित कर्म।
What is संचित कर्मा? The results of actions performed in all previous birth. हम सबके अनंत कोटि previous birth हो चुके होंगे, which are in seed form. ये जो impression है ना, that is only seed form, and giving rise to endless crores of births in future. जो हमें आगे भी बहुत सारे बर्थ दे सकता है, हमने इतने काम करे हुए. These are called संचित और accumulated कर्म. In short, हमारे आज से पहले जो भी जन्म हुए, जितने भी जन्म हुए, उनका जो भी कलेक्टेड इम्प्रेशन, जो अभी हमने क्रियमान कर्म से इम्प्रेशन की बात करी थी, तो हमारे अंतःकरण में जो कुछ भी स्टोर्ड है पुराने कर्म सीड फॉर्म में, बिल्कुल चिप वाले फॉर्म में, वो अक्यूमुलेटेड कर्मा हमारे संचित कर्म. Now, G means to collect. संचित means very well collected. पीछे के हमारे collected. Okay. In human birth, we not only, अच्छा, अब there is a difference in human birth and other bodies, like animals, और इनमें फर्क है. We not only exhaust our karmas, but are also create new karmas. हमारे ह्यूमन बर्थ में ही नए कर्मा भी जनरेट हो सकते हैं, पुराने एग्जॉस्ट होते हैं, नए भी जनरेट हो सकते हैं. लेकिन अदर बॉडीज जैसे एनिमल और इनके लिए न्यू कर्मा जनरेट नहीं होते, इनके लिए अलग रूल्स होते हैं, बिकॉज ये बेचारे कुछ कर भी नहीं पाते, इनके बहुत लिमिटेशंस हैं. एंड बिकॉज एनिमल्स परफॉर्म एक्शंस विदाउट अ सेंस ऑफ डूअरशिप, ये भी रीजन है. और प्लस इनकी जो योनियां है, ये सिर्फ भोगने के लिए बनाई हुई है. जो भी पास्ट डीड में बैड डीड्स इन्होंने करी है, जिनकी वजह से इनको ये जन्म मिला है, वो भोगने के लिए बनाई हुई है. तो इनके नए कर्म जनरेट नहीं होते, नए हमारे ही होते. एनिमल्स हैव नो चॉइस इन एक्शंस एंड प्रोग्राम्ड बाय नेचर और गॉड. तो इसलिए उनको जो करना है करना है. एक बार अपने थिंकिंग थर्सडे में किसी ने क्वेश्चन पूछा था, और इस तरह से कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग अगर सपोज नॉनवेज खाता है, तो वो एक पॉइंट हो गया, वो शास्त्रोक्त तो नहीं है. लेकिन एक एनिमल अगर किसी को मार के खाता है, तो क्या उसको पाप नहीं लगता? सो हियर इज द आंसर, यस, उनको पाप नहीं लगता. वो तो उनको जो मिला हुआ है, दे डोंट हैव एनी डूअरशिप, और उनके हाथ में कुछ प्रोग्रामिंग नहीं है, वो पूरा का पूरा प्रोग्राम है. सो इसलिए उनका लाइफ और उनका कर्म का स्टाइल अलग है. ओके, नाउ ये संचित कर्मा हमारे कैसे बनते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं? हमारे अंदर एक इग्नोरेंस है, अविद्या है, जिसकी वजह से हमें एक डूअरशिप का भाव पैदा होता है. हम सब में है, हम सब में है. बल्कि एमबी में तो सिखाया जाता है, शो इट, आप काम करो, शो करो, दैट इज द डूअरशिप. नाउ दिस डूअरशिप, इससे क्या होता है? इम्प्रेशंस ऑन द चित्तम, इससे हमारे चित्त में इम्प्रेशन पड़ते रहते हैं. ज्ञानी के क्यों नहीं पड़ते? उनको डूअरशिप नहीं. नाउ दीस कर्मा इज इन सीड फॉर्म, और ये कर्मा जो है, ये लीड्स टू कर्म फला. तो अविद्या की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से हमें डिजायर्स पैदा होती है, और उन डिजायर्स की वजह से हम काम करते हैं, कर्म होते हैं, और उन कर्म के संस्कार, इम्प्रेशंस चित्त में बनते रहते हैं, एंड विच लीड्स टू मोर कर्मास, मोर डिजायर्स. तो ये हमारा एक सर्कल इस तरीके से चलता रहता है, चलता रहता है. ये तो संचित कर्म की बात हो गई. अब नेक्स्ट, थर्ड एंड लास्ट आता है प्रारब्ध कर्म. व्हाट इज प्रारब्ध कर्म? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. हमारे अनंत कोटि जन्म हो चुके हैं, तो ये हमारे सारे संचित कर्म हैं. इनके अलग अलग स्टैक होते हैं. ये हमारे पुण्य कर्म है, तो इनका अलग है. जैसे बैंक में प्लस माइनस क्रेडिट डेबिट वैसे नहीं होता. ये पुण्य कर्म अलग होते हैं, और ये पाप कर्म अलग होते हैं. जब हमारा कोई एक बर्थ होता है, तो बेस्ड ऑन विच कर्म आज रेडी टू फ्रक्टिफाई, सारे कर्मों का रिजल्ट अभी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि हर चीज का रिजल्ट एक सेम टाइम पे नहीं आता. वो टाइम हमें नहीं पता.
जो जो कर्म पीछे के करे हुए संचित कर्म में से अभी फल देने के लिए तैयार है, विच इज एबल टू फ्रक्टिफाई, वो एक कॉम्बो पैकेज हमें मिलता है। जैसे कि एक कॉम्बो वन ये हो सकता है, हमको जो प्रारब्ध मिलता है कि 50% पुण्य लेके आए और 50% पाप लेके आए, तो अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ रहती है। एक कॉम्बो ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास पाप कम है और पुण्य ज्यादा है, तो और वो पुण्य फ्रक्टिफाई होने के लिए तैयार है, तो हो सकता है हम 60% या 66% पुण्य लेके आए और कुछ पाप लेके आए 30%, मतलब 2:1 का रेशियो लेके आए या 1:1 का रेशियो लेके आए। या फिर ये भी हो सकता है कभी कि पुण्य कर्म कम बचे हैं और पाप कर्म ज्यादा फ्रक्टिफाई होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे पास ज्यादा पाप कर्म लेके आए, 2:1 ज्यादा पाप है और कम पुण्य है। ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, एक इलस्ट्रेशन के लिए एक एग्जाम्पल है कि हम लोग इस दुनिया में आते हैं अलग अलग कॉम्बो पैकेज के साथ। इसीलिए हमको अपनी लाइफ किसी दूसरे सक्सेसफुल बंदे से कंपेयर करके दुखी होने की जरूरत नहीं होती। ये हमको समझना है। ये जो हम पैकेज लेके आते हैं ना प्रारंभ में, हमारा खुद ही का करो किसी और करने की। ओके, होता क्या है, ये संचित कर्म है, ये हमारा अल्टीमेट अबोर्ड है, घर है। जैसे हम एक ट्रेवल पे जाते हैं तो घर से हम चलते हैं, एक बैग लेके चलते हैं और ट्रेवलिंग में गए, वहां पे खूब शॉपिंग करी, खूब अच्छा लगा, तो वहां पे और एक हम इतना सामान खरीद लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। जब लौटते हैं तो एक के बाद एक और बैगेज तैयार और हम 2 बैगेज लेके आ जाते। ठीक ऐसे जब हम इस धरती पे आते हैं, ये हमारे संचित कर्म हम लेके आए हैं, उसमें से एक पोर्शन हम एक प्रारब्ध कर्म जो फ्रक्टिफाई हो गया, ये जो कॉम्बो के हिसाब से वो हम लेके आते हैं। पर यहाँ आके हम इतना कर्म करते हैं, ऐसे कर्म और बढ़ाते रहते हैं, ग्रीड है, एंगर है, कंपटीशन है, वही राग है, द्वेष है, इस सब की वजह से कि हम सपोज 100 कर्मा एग्जॉस्ट करने के लिए आए, तो 100 में से कुछ तो एग्जॉस्ट किए, लेकिन और 100 हम नहीं बना करके चल देते। दिस इज आवर प्रॉब्लम। और इस तरीके से वो जो संचित का ये है ना, ये और बढ़ता जाता है। बट अलग अलग होता है, पुण्य भी करते हैं तो इसमें ऐड होता है, पाप भी करते हैं तो उसमें ऐड होता है। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम, हम पूरा एग्जॉस्ट तो कर नहीं पाते, हम और ले लेते हैं। जैसे कि हम ट्रेवलिंग में जाते हैं तो लालच होता है। नाउ दिस पैकेज प्रारब्ध कर्म, इस पैकेज बेस्ड ऑन आवर एक्शंस जो हमें मिलता है, इसमें क्या क्या आता है इस पैकेज में? एज, दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड। प्रारब्ध में, प्रारब्ध इज समथिंग वी कांट चेंज, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? एज, ठीक है। और ये इसके लिए हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते, ये किसने दिया हमको? हम ही, हमारे ही तो है ये संचित। हाँ, हम ही लाए हैं, हमारे ही है, भगवान के करे हुए नहीं है या थोपे हुए नहीं है भगवान ने हम पे। हमको जो एज मिली है वो हमारे को इस दुनिया में जो भी जॉय सोरो, जो भी भोग हमको करने को मिला है, सुख दुख, वो भी हम लाए हैं। और इनफैक्ट यहाँ तक कि हमें ह्यूमन बीइंग का बॉडी मिले या फिर पशु पक्षी किसी एनिमल बर्ड का मिले, ये इसको बोलते हैं जाति। वो पीछे जब कास्ट आए, वो कास्ट, ये भी हमको अपने इस पैकेज में मिलती है बेस्ड ऑन जो कर्मा फ्रक्टिफाई होने के लिए तैयार है, मिलते हैं, वो पैकेज के साथ हम इस धरती पे आते हैं। इट इज जस्ट लाइक वी गेट सैलरी पैकेज बेस्ड ऑन आवर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, सिमिलरली बेस्ड ऑन आवर फ्रक्टिफाइड जो प्रारब्ध कर्मा है, उसके हिसाब से हम इस धरती पे ये सब लेके आते हैं। ओके, तो इस शरीर को बस ये सब हो गया। और ये जो प्रारब्ध कर्मा है ना, ये भोग करने से ही नष्ट होते हैं, हमको भुगतना ही पड़ता है, वेदर इट इज गुड और बैड, नो एस्केप, ठीक है। ये सिर्फ भोग करने से ही क्षीण होते हैं। और प्रारब्ध का जो फुल फॉर्म है, ये प्रकर्षण आरब्ध, अर्थात अच्छी तरह से फल देने के लिए जिनका आरंभ हो चुका है, very well started to give you the results. Good, bad depends upon. Okay, now
Having given birth to this body, joy, sorrow can be destroyed only by भोग. या तो good है तो enjoy करो, नहीं तो suffering. This is called luck. This is called destiny. This is called fate. सबका अलग अलग होता है because सबका अलग अलग पैकेज है. The part of the total karma which have fructified to give us present birth and experiences, that is what प्रारब्ध कर्मा. This is something जहाँ पे हमारा free will नहीं चलता. Okay, then God has decided my fate. Now I am helpless. There is no use of in doing anything as everything is decided. We can't change anything. ये बहुत लोग बोलते और बहुत लोग मानते हैं और वो मान करके ऐसे बैठ भी जाते हैं. सो देन इन क्वेश्चंस का क्या जवाब है? क्या जवाब है कर्मा थ्योरी पे? वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई गेट what I get now is because of what I have done in the past. I must stop blaming others. This is the key line. आज के पूरा इसका यही है. And this is what true spirituality is. आपको आपके साथ जो भी सफरिंग हो रहा है, good, bad, whatever it is, we should stop blaming others. Because हमारा ही तो लाया हुआ है हर चीज. Well calculated. Take full responsibility for my life and experiences. We may have no choice in what we get, but we do have choice in the attitude with which we receive it and in what we do with what we get. हमको जो मिला है उससे हम क्या करते हैं? That is important. और हम किसी चीज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं? जिंदगी में कई बार कुछ बुरा भी हो जाता है, तो हमारा एटीट्यूड क्या है? आप उसको हंस के भी झेल सकते हो और सारे टाइम चिड़चिड़ करके भी कर सकते हो. चॉइस इज योर्स. तो बेटर जो मिला है उसको राइट एटीट्यूड से ले ले. दूसरों को ब्लेम करना बंद करें. जो रिश्ते मिले हैं, जो रिलेशनशिप मिली है हमारी है. जो डिजीज मिली है, जो रोग मिले हैं वो भी हमारी है, हमारी अपनी अर्न करी हुई है. अब आगे विवेक थोड़ा सा ढंग से काम कर ले. इस स्वामी चिन्मयानंद जी का बहुत अच्छा कोट है. व्हाट आई गेट इज हिज गिफ्ट टू मी. व्हाट आई डू विद व्हाट आई गेट इज माय गिफ्ट टू हिम. जो हमें मिला है भगवान का गिफ्ट है. हम उसका क्या करते हैं, भगवान को क्या देते हैं वापस, ये हमारा गिफ्ट. बहुत कुछ दिया है भगवान ने, बैठ के सोचेंगे तो. ओके, नाउ प्रारब्ध कर्मा पे एक बार फिर से आते. जस्ट लाइक शॉर्ट एरो, ये तो भुगतने से ही जाएगा. एन एरो दैट हैज बीन शॉट फ्रॉम द बो हिट्स इट्स टारगेट एंड एग्जॉस्ट इट्स मोमेंटम. ये बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नहीं छोड़ता है प्रारब्ध कर्मा, उस पे भी आते. सिमिलरली दोज एक्शंस व्हिच हैव स्टार्टेड फ्रक्टिफाइंग गेट एग्जॉस्टेड ओनली बाय गिविंग देयर रिजल्ट. तो वो भुगतना ही पड़ेगा. जो प्रारब्ध है वो भुगतना ही पड़ेगा. रिलेशनशिप इश्यूज है जिससे शादी हो गई, जो भुगतना है भुगतना ही पड़ेगा. ठीक है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी ना करो. यू टेक योर प्रॉपर एक्शन. आप अपनी चीजों के लिए दूसरे पे ब्लेम करना बंद करो बस. ओके, बट टेक प्रॉपर एक्शन. ऐसे नहीं, कुछ नहीं, आप बीमार हो गए तो बोले ये प्रारब्ध है. नहीं नहीं नहीं, उसके लिए आपको अपना काम करना है. डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेनी है, ठीक होना है. ये आपके अभी के कर्म है. डू दैट प्रॉपरली. इसी तरह हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचो और काम करो. प्रारब्ध कर्म, a wise man too has taken birth in his body due to his प्रारब्ध कर्म. अभी बॉडी मिली है तो पीछे से कोई प्रारब्ध है, वो पैकेज उसी से मिलता है. Even after attaining self knowledge, the prarabdha of the body continues. We therefore see that even a wise man may get cancer or a heart attack. बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ये प्रॉब्लम हुई है. ठीक है, और उनको फर्क ही नहीं पड़ता.
जो सच रियलाइज सोल होती है उनको भी। तो अगर उनको ये सब हो सकता है तो हमको भी तो बीमारी हो सकती है ना। बीमारी है, अच्छा इलाज कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, सब कुछ करो, लेकिन चिड़चिड़ मत करो। As far as he is concerned, he remains the non-doer and non-enjoyer, अकर्ता अभोक्ता। This is for the ज्ञानी। उनको भी प्रॉब्लम होती है बट उनको नहीं फर्क पड़ता, इवन दे आर, उनको इससे तकलीफ भी नहीं होती। वो सेल्फ रियलाइजेशन कि हम नहीं है, हम नहीं है तो हमको जो चीज करना चाहिए वो करना है। अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 18 का 12 श्लोक है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा मिला हुआ, यही तो प्रारब्ध हम देख रहे हैं। गुड बैड एंड मिक्स्ड रिजल्ट तीनों मिलते हैं, और ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। ठीक है, अगर हमने कर्म फल का त्याग नहीं किया, इसीलिए भगवान भगवद गीता में यही कहते हैं कि आपको जो कर्म है उनके फल का भी त्याग करना है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। यही फर्क है ज्ञानी में और हमारे जैसे कॉमन मैन में। अज्ञानी तो नहीं बोलूंगी लेकिन कॉमन मैन बोलूंगी, दैट्स मोर रिस्पेक्टेबल टर्म फॉर अस। ओके, सो एग्रीएबल, डिसएग्रीएबल एंड मिक्स्ड, threefold indeed is the fruit of that accrues after death from the actions of the unrenouncing, but there is none whatsoever for those who have renounced। उनको फर्क, उनको नहीं मिलते फल, उनके खट्टे नहीं होते, उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। हमारे जैसों के लिए ये प्रारब्ध के यही है, फेवरेबल होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस होती है। अब ये जो तीनों होती हैं, बस थोड़ा सा टाइम और लूंगी मैं, ये जो तीनों होती हैं, एक होती है सेल्फ विल्ड एक्शन, एक होते हैं एक्शन विल्ड बाय अदर्स, और एक अनविल्ड एक्शन, एक्शन विल्ड बाय डेस्टिनी। ये तीनों का हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं एंड देन विल फिनिश। ओके, प्रारब्ध कर्म जो है, डेस्टिनी bears fruit in the form of favorable and unfavorable circumstances. Understand? प्रारब्ध कर्म जो हमें मिलते हैं, उनका जो रिजल्ट मिलता है ना, वो हमको सर्कमस्टांसेस के रूप में मिलता है, कर्मों के रूप में नहीं मिलता। परिस्थिति सर्कमस्टांसेस। अब परिस्थिति फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है। कैसे? इसके 3 हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक ये यहाँ पे हमने देखा फेवरेबल, मिक्स्ड एंड अनफेवरेबल। एक सेल्फ विल्ड, एक्शन विल्ड बाय अदर्स, खुद से, दूसरों से, और ये डेस्टिनी से, देव इच्छा से। वो क्या है? सेल्फ विल क्या है? किसी बंदे ने 2 तरह के बिजनेस किए, ठीक है। एक जने से बिजनेस किया, उससे कुछ माल खरीदा, उसमें उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर एक दूसरे बंदे से कोई दूसरी तरीके का माल खरीदा और वो सेल किया, लेकिन उसमें उसको लॉस हुआ। तो ये सेल्फ विल है, ये पूरा का पूरा जो कर्म बंदा कर रहा है, ये सेल्फ विल है कि उनसे माल ले ना ले। लेकिन ये जो प्रॉफिट और लॉस होना है, ये फिर प्रारब्ध की वजह से होता है, ठीक है। सो ये खुद की इच्छा से काम कर रहे हैं, और उसमें रिजल्ट्स हमेशा प्रारब्ध की वजह से अलग अलग आ रहे हैं। Then there is a second type of ये एक्शन विल्ड बाय अदर्स। ये पूरा एक्शन खुद की तरफ से है, वो बिजनेस माल खरीदे नहीं खरीदे, टोटली हमारी अपनी इच्छा। ओके, नाउ द विल ऑफ डेस्टिनी, देव इच्छा। इसका एग्जाम्पल है, कई बार लोगों को सडन गेन ऑफ मनी हो जाते हैं, अनअर्न्ड मनी मिल जाती है, लॉटरी से मिल सकती है, शेयर मार्केट से मिल सकती है, और किसी पुरानी प्रॉपर्टी से मिल सकती है, या कभी किसी पुराना कोई रिलेटिव ही सडनली बहुत सारा प्रॉपर्टी छोड़ जाता है तो उसको मिल जाती है। तो इससे भी कंपैरिजन नहीं करना, उसको क्यों मिल रही है किसी को, ये देव की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा से उसे मिलती है। ये प्रारब्ध ऐसे भी होते हैं। देन
अभी कल जो आपने सबने न्यूज़ देखी होगी, वो सिंगापुर का एयरप्लेन जो लंदन से उड़ा था और सिंगापुर पहुंचने से पहले उसको बैंकॉक में रुकना पड़ा। रास्ते में जो उसको टर्बुलेंस की वजह से प्रॉब्लम हुई, ऑलमोस्ट वो 200 लोग ऐसे सोच रहे थे कि ऑलमोस्ट उनको डेथ मिल ही गई है। तो इस तरह की जो चीजें होती है, बट लकीली एक एक को छोड़ के सब जीवित है। ये कल तक की न्यूज तो मुझे पता है। सो ये जो होता है, दिस इज देव इच्छा। ये भी प्रारब्ध की वजह से हुई, ये पुराने प्रारब्ध की वजह से हुए हैं ना। विल ऑफ अदर्स, कभी कभी हमको दूसरों की इच्छा की वजह से भी ऐसा काम होता है। जैसे कि आ, ये सब प्रारब्ध के कारण होता है, पीछे से आ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अडॉप्टेड बाय रिच फैमिली। आप सबको पता है, वो सलमान खान के एक सिस्टर उन्होंने वो अडॉप्ट की थी, उसके फादर ने। तो उसको सडनली तो वो एक बैगर थी, और कहाँ उसको इतना नेम फेम एंड मनी सब कुछ मिल गया। क्यों मिल गया? ये उसका प्रारब्ध था, ये उसका प्रारब्ध था। सो दिस इज विल ऑफ अदर्स। उसने खुद कुछ नहीं किया इसके लिए, ये दूसरों की वजह से मिला। एक खुद की वजह से मिलता है, रिजल्ट प्रारब्ध देता है। एक डेस्टिनी दे देती है रिजल्ट, और एक दूसरे लोग भी दे सकते हैं। और कई बार हमने ये भी देखा, कोविड में बहुत लोगों के साथ, बहुत बार, सबके साथ तो नहीं हुआ, बहुतों के साथ हुआ, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, लॉस हुआ। तो ये भी प्रारब्ध है। जिस हर बंदे के साथ नहीं, जिसके साथ हुआ ये उसका लॉस है, बिकॉज ऑफ प्रारब्ध। सो ये एक पीछे क्वेश्चन था, व्हाट हैपेंस टू द आगामी कर्मास ऑफ अ रियलाइज्ड मास्टर। तो वो सिंपल सा चीज है, आगामी कर्मा इज also destroyed by knowledge, and the wise man is not affected by it, as a lotus leaf is not affected by the water on it. ये तो रियलाइज पर्सन के लिए हो गया। और लोटस लीफ उस पानी के बूंद से कभी भी गीली नहीं होती। ऐसा ही होता है वाइज मैन। वाइज मैन इज अनअटैच्ड टू ऑल दीज कर्मास, सेंस ऑफ नॉन डूअरशिप। देन हु टेक्स इट? तो पहले ये एक बहुत एक अच्छा सा स्टोरी है लॉर्ड बुद्धा का, देखते हैं। वंस लॉर्ड बुद्धा वाज अब्यूज्ड व्हाइल ही वाज आस्किंग फॉर आल्म्स। कुछ भी लोग कुछ कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, रियलाइज पर्सन को भी कह सकते हैं। The disciple got angry and asked Lord Buddha, shall I give him a piece of my mind? Lord Buddha ने क्या बोला? If you have taken anything, you have to return it. Since I have not taken anything, I do not have to give back anything. This is wonderful. बड़ा अच्छा है कि आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो सेल्फ रियलाइज पर्सन और इनको भी मिलता है, बट वो इक्वानिमस माइंड रखते हैं, सम अवस्था में रहते हैं। कोई मान करे, अपमान करे, बुरा कहे, भला कहे, दे आर अनअफेक्टेड टोटली। हमको कोशिश करनी चाहिए। हम एकदम से तो नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश करेंगे तो अलोंग विद द इयर्स थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, दैट प्योरिटी ऑफ माइंड वो हम ला सकते हैं। But actions must have results. If they do not go to the wise man, ये आगामी कर्मा के लिए है। Who gets them? It is explained thus. ये further to those who praise, serve and worship the wise man go the results of the good actions done by the wise man. And to those who criticize, hate, cause pain to the wise man go the results of all unpraiseworthy and sinful actions done by the wise man. Friends, take the meritorious results and enemies the demeritorious results. ये मैं क्यों कह रही हूँ? मैंने देखा है लोग बाग आजकल जैसे यूट्यूब पे साईं बाबा के खिलाफ काफी कुछ बोल रहे हैं। साईं बाबा इज ए सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, बिल्कुल उनके खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, और वो बोल करके यूट्यूब फॉरवर्ड कर रहे हैं, और हमारे जैसे लोग देख रहे हैं। आपने देखा, आपको नहीं पता, आप इमीडिएटली उसको डिलीट कर दो।
डन फिनिश। क्योंकि कुछ लोग उसको सुन के इंटरेस्ट लेके उस पे बातें कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि आप एक सेल्फ रियलाइज पर्सन का कौन सा पार्ट ले रहे हैं। ये भी एक्शन और इन एक्शंस के भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो एक और है, इट इज इंटरेस्टिंग। अब हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, ये होते हैं, प्रारब्ध सबके ऐसे ही हैं, तो और थोड़ा सा क्या कहें कि सर्कमस्टेंसेस, जो प्रारब्ध कर्म हमको कंड्यूसिव और नॉन कंड्यूसिव जो हमको सर्कमस्टांसेस देती है, ऐसे में हमें एक टेस्ट करना चाहिए विच इज कॉल्ड FIR टेस्ट। हमको धीरे धीरे अपने माइंड को प्योर करना है। FIR टेस्ट क्या है? F मीन्स फ्रीक्वेंसी। हमें चेक करना है हाउ फ्रीक्वेंट यू गेट डिस्टर्ब। अभी वो लॉर्ड बुद्धा वाला स्टोरी देखा ना, उनको किसी ने कुछ कहा, डिस्टर्ब ही नहीं हुए। हमको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या आती है? कोई दूसरे ने कुछ कह दिया, हम डिस्टर्ब हो जाते। सो चेक इट, कीप चेकिंग दिस। I, इंटेंसिटी, विद व्हाट इंटेंसिटी यू गेट डिस्टर्ब्ड। कितने डिस्टर्ब होते हो और कितने जल्दी जल्दी डिस्टर्ब होते हैं। एंड देन R इज रिकवरी, हाउ क्विकली यू रिकवर फ्रॉम द डिस्टर्ब्ड माइंडसेट। ये अपने आप को चेक करो, ये बहुत अच्छा टेस्ट है। जब भी प्रॉब्लम आए जस्ट टेस्ट इट। और फिर एक चीज ध्यान रखो, अगर लॉर्ड बुद्धा को ही फर्क नहीं पड़ता किसी के कुछ कहने से, तो हमें भी करना चाहिए कि हमें भी फटाफट रिकवरी करनी है। कोई भी बुरी बात हो गई, कोई कुछ भी, कोई बुरी इवेंट हो गई, उसके अंदर घूमते नहीं रहना है। उन विचारों को बार बार टेप रिकॉर्डर की तरह रिपीट करके अपना पीस ऑफ माइंड खराब नहीं करनी है। अगर इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, इफ यू वांट प्योरिटी ऑफ माइंड, जल्दी से जल्दी रिकवरी कर। ये आपके हाथ में है। कीप टेस्टिंग द FIR टेस्ट। थैंक यू। थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, बट 1 hour 12 minutes। क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हो। मैम के एक्सपर्ट कमेंट्स, मैम को कुछ इसमें इम्प्रूव। Fantastic. I love the FIR test. Excellent. Any questions from anybody? Madam, I have one question. Go हाँ जी। ahead. Shakuntala is there to answer. आप भी पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन इज बेसिकली कि लेट्स से जैसे हम कहते हैं कर्मा बनते हैं, अब कोई आदमी हमें कुछ सुना रहा होता है, लाइक सपोज नाउ ऑफिशियली वी आर डूइंग सम वर्क वेयर वी हैव टू पे अंडर टेबल आल्सो, सो वो हमारे कर्मा बनेंगे कि हमारे ऑफिस की तरफ से कैसे बनेंगे वो कर्मास? बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ आवर ऑफिस एंड वी आर डूइंग ऑल दी वर्क विच एज पर कर्मा के हिसाब से वो गलत है, तो उसको कैसे कौन से करेंगे? इसमें ये होता है कि कई बार जो हम कर्मा कर रहे हैं और जी वो बॉस के लिए कर रहे हैं, जी बिल्कुल। बॉस के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है। दैट गोज फॉर बॉस, दैट गोज फॉर बॉस। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। बाकी मैम शकुंतला ने अच्छा स्लाइड दिखाई थी ना, एक्शन एंड व्हाट इज द इंटेंशन। करेक्ट। Shakuntala ji, I have a आपका question. इंटेंशन क्या है? Is your intention question. to earn for yourself? Is greed the intention with which you are doing the action? If it is not to personal gain नहीं है आपका इसमें, then आपका कर्म नहीं बंधेगा। Like a soldier. Soldier Okay. जब war पे जाते हैं, तो उनका इंटेंशन क्या है? उनका इंटेंशन प्योर है। It is not that I'm going to kill this person because I hate this person. करेक्ट। तो वो एक्शन एंड इंटेंशन, दैट वाज अ गुड स्लाइड शकुंतला ने जो दिखाई थी, है ना? जी। एक्शन, इमोशन, इंटेंशन, ये मुझे लगता है ट्रायड जो है ये इम्पोर्टेंट है फॉर द कर्मा टू बी अंडरस्टूड। Shakuntala ji, one question. Those who are born, if anyone born in the political family, do they, if they don't do any mistake also, will they get affected? Will their life get affected by spending those money on us?
प्रारब्ध है ना, हाँ, प्रारब्ध। like अगर if we are part, just an example, if we are part of any political family or anything, if anyone makes some money and give it to us, if we spend those money, will our karma become, will it become our karma or not? देखो, कहीं ना कहीं a action that is not meant for people's benefit कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेगा. बट लाइक शकुंतला showed that slide, वो जो था ना पाप पुण्य का 20%, 40%, 60%, that is an important slide to understand, श्री लक्ष्मी, कि आपका उसमें भोगदान कितना है. What is your contribution in that action? No, if I don't contribute, but if I spend those money, will I get any karma? If I don't contribute, See, श्री लक्ष्मी, तुम तो ऐसे कह रही हो कि जो the money that we are spending is what we are growing. We are not growing anything, है ना? yeah, The money is being circulated, no? yeah. So तुमको पता है, from when you went to the shop and you bought something, that money that the shopkeeper gave you, वो किसने उस shopkeeper को दिया था? नहीं. No, so you don't know that, no? Yeah. So it is not going to affect you. Okay, thank you. Money circulating. Okay, got it. I'm not growing money, this is my money. है ना? ऐसा नहीं कह सकते. हमारा पैसा बैंक में जाता है, बैंक से पैसा कोई लोन लेता है. So money is circulated. हमारे पास अपना पैसा कुछ नहीं है. ठीक है. It's all somebody else's money that has come to you. हाँ. Right? Yeah. Thank you, ma. Thank you, Shakuntala ji. Welcome. Okay, wonderful session, but Shakuntala, what slides you have made. Brilliant slides, really brilliant slides. Funny question. Somebody is asking a funny question. Shakuntala, क्या मैम, वो पढ़ना है. कौन सा funny question है? क्या है? Funny question. Many times we find ants, cockroach in kitchen and hygiene purpose. Oh, इसका आंसर मुझे आता है, thankfully. इसका आंसर मुझे आता है. जैसा कि हाँ, एक आंसर आता है बस. ठीक है, ये क्वेश्चन कई दिनों से मेरे दिमाग में भी था. इवन आई यूज दैट मॉस्किटो वाला. तो ये इसका क्या करें? तो इसमें क्या होता है, जब हम ये रामायण और यही कुछ सुन रही थी कभी सुंदरकांड, तो क्या युद्ध करना पड़ा. भगवान राम ने भी युद्ध किया, ठीक है, और राक्षसों को मारना पड़ा, ठीक है. ऐसे ही लॉर्ड कृष्ण के टाइम में भी कौरव पांडव का युद्ध हुआ और वो जरूरी था, ठीक है. तो समटाइम्स ये जो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, इनको मारना पड़ता है. अब ये जो मॉस्किटो और ये है, ठीक है, हमारे लिए अब राजा महाराजा वाला टाइम नहीं रहा. हमारे लिए ये राक्षस कौन है? ये मॉस्किटो ही तो है. इनसे हमारा फायदा हो रहा है क्या? हमको डिजीज देते हैं, डेंगू देते हैं, फलाना देते हैं, ये सब देते हैं. तो दे आर जस्ट लाइक राक्षस टाइप ऑफ प्रवृत्ति. तो हमको इनको किल करना पड़ेगा और इसका पाप नहीं लगना चाहिए. बिकॉज अब जैसे कोविड का टाइम था, तो जो वायरस है वो भी राक्षस चीज है. तो हम क्या उसके लिए, उससे अपने बचाव के लिए काम नहीं करेंगे? अपने बचाव के लिए तो लड़ेंगे. आई थिंक देयर इज नो सच. हाँ, ये मुझे लगता है. बाकी मैम आप बताइए. I think it's a very good analysis. अभी असुर प्रजा जो है, इसमें there are certain species जो भी उसमें आते हैं. So obviously anything that harms comes under that particular category. So that's the reason some kind of annihilation, meaning destruction, has to take place. Rahul and Uma, Shakuntala. हाँ. नमस्ते मैम, प्रिया है. हाँ, बोलो. मैं इस सवाल का ये सवाल मेरे से कुछ दिनों पहले फोर्सेस में कुछ लोग हैं, उन्होंने मेरे से पूछा था कि जो हम इनकाउंटर कर देते हैं या हम इस तरीके से जो हम सजा देते हैं, तो उसका हमें क्या फल मिलेगा, उस चीज का हम उसको कैसे काउंट करेंगे.
हम तो उसका मैंने एक बार भागवत गीता में पढ़ा था, हत्या में और वध में जो अंतर है वही अंतर है, जैसे जो किसी को मारना, हाँ, किसी को मारना, लेकिन वो मारना एक तो होता है कि हमने अपने फायदे के लिए किसी को मार दिया, वो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं कर रहा था, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था और हमने उसको मार दिया, दैट इज कॉल्ड हत्या। उसका आपको फल मिलेगा। लेकिन कोई लोगों को मार रहा है, उनको कष्ट पहुंचा रहा है, हमने मॉस्किटो रेपेलेंट लगा दिया, हम मच्छरों की बात करते हैं, हमने मॉस्किटो रेपेलेंट लगा दिया, हमने अलग अलग वो जाली लगा दी, हमने वो क्या बोलते हैं जो जिसके अंदर मच्छरदानी लगा के सो गए, लेकिन अगर वो दोस्त मच्छर अगर तब भी नहीं मान रहा है, तब तो हम उसकी वध करेंगे ना, ये हत्या में नहीं आएगा, ये वध में आएगा। और वध करना, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए वध करने में कोई वो नहीं लगता है, ये हमारा कर्म है। यही एग्जैक्टली गीता यही में। तो अभी तृप्ति मैम ने भी बोला ना, उनका आंसर देते समय सोल्जर, क्षत्रिय, हम्म सोल्जर का हम्म क्षत्रिय का जी काम है, जी दीदी। यहाँ पे हमको सोल्जर बनना, वो क्षत्रिय हाँ बनना बस है। सिंपल है, तो इसलिए। और रह गई प्रारब्ध के हिसाब से, आपको एक ऐसा घर प्राप्त हुआ है जहाँ पे पैसा है, अरे आप आम खाओगे कि पेड़ गिनोगे? तो आम खाओ, मजे करो, वाई पेड़। ओके, नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन। मेरा ये कहने का था कि स्वयं की Okay, there रक्षा is करना, Rahul and there is हाँ, Kanwal. राहुल बोल रहे हैं मैम, हाँ अच्छा, राहुल Rahul का आप बोलो। वीडियो। स्वयं की रक्षा करना भी बहुत ही एक वो चीज निजी चीज है, क्योंकि हर कोई किसी अपने नजरिए से भी देखेगा। स्वयं की रक्षा के क्या मापदंड होंगे? तो खुद की रक्षा तो करनी है। क्योंकि कोई बोलेगा कि स्वयं की रक्षा होती है कि आई मीन जैसे कि मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई मुझे लग रहा है मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ कि वो पैसे कोई किसी की और चुराना। के उस पर नजर है, तो ये है कि मेरे को अपनी रक्षा करनी है, उसको खत्म कर दे। तो ये है कि ये स्वयं की रक्षा भी वो एक कांट बी लाइक आई डोंट थिंक इट्स वन साइज फिट्स ऑल। Sorry. Rahul, everything will have a consequence. कर्म थियरी में consequence is very important. कर्म फल, करेक्ट है? तो आप कोई भी एक्शन करोगे उसका consequence होगा, but the consequence will depend on the person, the intention of the person, the emotion, the invested action. See, हम action भी करते हैं, and how invested we are in the action, that is also equally important. नहीं मैम, हमने बट जैसे कि एक्शन किया है ना, पर हमारा इन्वेस्टमेंट उस एक्शन में कितना है? और एक और जैसी चीज जैसे कि वो श्री लक्ष्मी जी बता रही हैं कि जैसे कि अगर कोई किसी बॉस के अंडर काम कर रहा है और उसको लग रहा है, तो दिख रहा है कि बॉस अजीब शरीफ तरीके से हाँ। पैसे कमा रहे हैं, हाँ, और ये है कि वो कंटिन्यू कर रहा है, मैं तो बॉस के लिए कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो ये वो क्या सही रहेगा? उसको तो इनफैक्ट ही शुड लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। correct. There is an option that he has, no? See, in a job situation, एक choice है आपके पास, whether you want to continue doing this for the boss or you have an option not to do it. So, And suppose somebody does and the not have the person- option. there are some people who take the option, there's some people who don't take the option. They'll say, what can I do? That situation is a situation of feeling helpless. So that will add to the consequence. And what about, ma'am, to that particular situation where a person, I mean, he cannot afford to go and look for another job. वो helplessly he's in that particular job. अंकित गया? He will तो have to उसमें- ask. He will have to ask some kind of forgiveness from God. That God, please help me to change my status, so that I can walk तो on ये the प्रारब्ध- path that you वो are showing me. वो प्रारब्ध कर्मा में आ जाएगा। Correct. So that is important. See, everything will have a consequence. Even for a soldier, there is going to be some consequence. जैसे
शकुंतला ने जो स्लाइड दिखाई थी पिरामिड वाली, कुछ तो कॉन्सिक्वेंस कैरी करेंगे ना। हत्या हैज, वध करो या हत्या करो, उसका कुछ तो कॉन्सिक्वेंस होगा। मे बी इट विल बी 0.1%, because every action will contribute to that consequence, no? Okay, ma'am, and what about involuntary actions? What if There is nothing involuntary. no, जैसे कि सांस लेना वो भी एक्शन ही है ना वे। No, that is no, that cannot be counted, no? That is the So state of the human body. वो अच्छा, so human that mechanism का एक हिस्सा है। it is only the conscious actions that is this thing, but of course then that is not in the जो महाआत्मा है तो वो not they're not I mean that's not like really वो conscious. नहीं हो। अभी तुम अगर जैनिज्म में देखोगे तो they count that also. That is why they wear the mask. And sorry ma'am, one last, I mean there are so many philosophies. is that like sorry I entire Christian trauma. तो हत्या किसी one भी last प्रकार question की was that हत्या will this carry some consequences, है ना? Okay, Momita, last. and the last question was that Rahul, कुछ और बेटा? Shakuntala di, To add something? Rahul, you want to add something? that Aja, Momita, please. ये in the God. Shakuntala di, thank you very much for the wonderful session. I have a question. When we do the remedy for planets, does it mean we take shortcut path, or in order to expiate the karma, we need to suffer? So how does it रेमेडी फॉर work? प्लैनेट्स। हाँ हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडी अच्छा करते है, हैं। करो ना, वो शुभ कर्म है, वो ऐड होगा, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा अच्छा, उसमें वो कर्मा पूरा एक्सपिएट होता है, और वी शुड सफर, इफ वी आर मीन टू सफर वी शुड सफर। नहीं नहीं, क्यों नहीं काम करो, काम करना है आपको, शुभ अच्छा कर्म अच्छा करो, उसमें क्या बुराई है, काम तो करो। Mamita, Shakuntala said about free will, no? So you are applying free will. यस यस है ना? आप अपनी फ्री विल अप्लाई कर रहे हो ना। अगर आप पाठ पूजा कर रहे हो, मंदिर में जाके तेल वो क्या कहते हैं चढ़ा रहे हो, ऑल दीज आर रेमेडीज, ये आप कर्म कर रहे हो। यू आर डूइंग सम पॉजिटिव एक्शन। यू आर नॉट सेइंग ओ आई मेरे तो चार्ट ऐसा है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, आई हैव टू सफर। यू आर नॉट डूइंग दैट, नो, यू आर डूइंग सम रेमेडीज, है ना, टू अपीज द गॉड। ओके, डेमी गॉड्स को अपीज करने के लिए सब रेमेडीज है। एंड मैम, फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, जो ब्राइबिंग ये सब का ऑफिस में, सो इफ समवन लाइक has to take the bribe and all in unethical way, the money comes to him, but if the person donates the money completely, so does it make any accumulate any bad karma for him? I can't answer this question. I mean, I don't know whether, see, his intention is कि उसको bribe नहीं लेनी चाहिए। अगर by force उसको bribe लेनी पड़ रही, because that's the job that he has, to appease himself, to make his guilt less, he's doing this action. अच्छी बात है कि वो अपनी guilt कम करने के लिए ये action कर रहा है। It's a good thing. It's only going to help the other. Ma'am, like Robin Hood. But yet it is best that he does not do it. है ना? Because ये तो आप अपनी गिल्ट को ठीक करने के लिए आप ये एक्शन कर रहे हो, पर आपका एक्शन तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सिक्वेंस में जाएगा। आपके वो it will add to your प्रारब्ध, and it will add to your kind of संचित कर्म। The other thing I want to say is, जैसे earth is a school, earth में हम आके, when we are born as a human being, we do many actions and we suffer many consequences. Now sometimes हमारे काम past life therapy में हम देखते हैं that sometimes the accumulated prarabdha by the time you end your life is so vast कि वो संचित कर्म को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत सारा पाप कैरी करेगा। So God has a way of helping you out. ये जो people who do a lot of bad karma,
when they pass away, when they give up their physical body, and they are not in the physical plane, in the other dimension, a situation is जिसको हम hell कहते हैं, नर्क कहते हैं ना, so a situation is created जहां पे you suffer the consequences, because यहाँ पे आप वो consequence suffer नहीं कर पा रहे. Like you said, no, a person who's taking bribes, अब वो फंसा हुआ है उसमें, he knows he's guilty, he's feeling very upset, correct? But वो नहीं कर पा रहा है, and he dies with that guilt and regret. Okay, now God also knows, God is fair, right? He also knows कि भाई ये बंदा जो है वो फंसा हुआ था. He tried his level best, उसने दान धर्म पूजा पाठ सब कुछ किया, पर उसके अंदर अभी भी वो guilt है. So God will help this person out by creating a situation where he can resolve his guilt. okay. In the other dimension. इसी को नर्क कहते हैं. भगवान से कुछ और रिबेट मिल जाता है बुरी उनको. चीज नहीं है. Hell is not a bad thing. Hell is a place where you redeem your sins. That's all. Nothing else. Ma, one question. What about politicians' kids? Will they karma? Will They it, will what? also have that. They will also have that. See, What बेटा should they ऐसा do? ना सोचो, ऐसा ना सोचो कि One more question. For the politicians are not suffering. A bad politician suffers ridicule, suffers humiliation. Every day bad things are written about him. Somewhere he knows that he's not good. Many things they suffer. Suffer हमेशा physical नहीं होता. Suffer is deeply emotional. It can tear your heart. सोचो कोई आपको आपके बारे में रोज गलत लिख रहा है. It is not humiliation. It is great suffering. No? People And suffer. one thing, they make a lot of money through other sources. If their kids will, They are making lot of money. It's okay. It doesn't matter. They will no, suffer. will it affect their kids' life? Kids will spend those money. Kids will enjoy in those money. Will it affect their kids' karma? वाल्मीकि की स्टोरी सबको पता ही है ना. नारद मुनि ने उन्हें कहा था when he was a डकैत कि भाई तुम ये जो गलत काम कर रहे हो, you think that your family is going to share your karma, and what happened? He said, yes, of course they will. I'm doing everything for them only. तो नारद मुनि ने कहा कि जाके पूछ लो पहले सबको. So he went, no? Correct? And he told his wife and children that, look, I'm doing this terrible thing, but it is for you only. And then they said, no, we have not told you to do this. We are not going to share this karma that you're doing, these bad acts that you're doing. And that changed his thinking. So हमें लगता है हम गलत चीज हमारे बच्चों के लिए करते हैं, but क्या बच्चे इस कर्म के भागीदार बनेंगे? Because they don't know what you are doing. So you should sit with your parents, your parents, your children, your wife or husband, and tell them, ये मुझे करना पड़ रहा है. Do you think I should continue doing this work? Like film actors. There are many film actors who will say, I will not do kissing scenes. मैं नहीं करूँगा. मैं intimate scenes नहीं करूँगा. मैं rape sequences नहीं करूँगा. You can say no. Correct? आप कह सकते हैं. You may lose a film. Doesn't matter. सोनाक्षी सिन्हा का मैं अभी Instagram का देख रही थी एक छोटा सा. She said that I told my producers I will not do kissing scene and I will not do intimate scene. आपको मुझे लेना है आप लीजिए, और नहीं लेना है तो किसी और के पास जाइए. So she is aware कि मुझे ये नहीं करना है, तो नहीं बोलना आना चाहिए. इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, है ना? Ma'am, one more question. Birds are animals, so they don't do anything from conscious mind. But sometimes, like if they take human birth in future life, so is it because of their good deeds as an animal or insect, or how does it happen? I can only say through work. I think Shakuntala can say उन्होंने पढ़ा है. तो मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि there are the souls in animal bodies. Animal souls और human souls अलग नहीं है मेरे हिसाब से.
सोल तो सोल ही है, ठीक है, वो ह्यूमन बॉडी में हो सकता है. एंड मेनी एनिमल्स स्टार्ट स्टेइंग विथ ह्यूमंस, जैसे zoo में रहते हैं, पेट डॉग्स है, पेट कैट्स है ना. सो स्लोली स्लोली दे गेट एक्लिमेटाइज्ड टू ह्यूमन इमोशंस. और जब वो ह्यूमन इमोशन से एक्लिमेटाइज्ड हो जाते हैं, देन मे बी इन सम लाइफ टाइम दे विल बी रेडी टू टेक अ ह्यूमन बॉडी. शकुंतला, आप कुछ कहना चाहती है इसके बारे में? मैम, इसमें ये जो साधक संजीवनी में स्वामी राम सुखदास जी ने जो करी है कमेंट्री, उन्होंने तो यही लिखा है कि जो एनिमल्स और ये हैं बर्ड्स, ये योनियां सिर्फ इनके कर्म भुगतने के लिए होती है. ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है. इतना हाँ, डेप्थ में नहीं बोला है. मैं तो सिर्फ अपने हाँ, काम से कह सकती हूँ that how the soul moves from one kingdom to the other, mineral kingdom से plant, plant से animal, animal से human, which is mentioned in let us कहना वेदांत में ये mentioned है. तो ये इस तरह से हमारा soul move करता है, और हमने अपने काम में भी देखा है. The person who's a human today is experiencing lifetimes in other species. So इसका मतलब है कि this is possible, है ना? Okay, should we end? yes. So let me end with a story. मैं Trupti ji, Uma ji has been raising hand for a long time. किसने? Uma ji has been raising a hand for a long time. Sorry. Uma ji. I'll not take long. Thank you, शकुंतला जी, for such a lovely. इसमें हमारा प्रारब्ध होता है, कर्म के फल मिलते हैं. पर जब हमने न्यूमरोलॉजी में सीखा कि नाम के अगर थोड़े लेटर्स चेंज हो जाते हैं, तो फिर हमारे उसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस तरह चेंज हो गए हमारे आगे. वो रेमेडी है आपकी, वो रेमेडी है. अभी जैसे मोबिता ने पूछा, मंदिर में जाओगे, मंत्र करोगे, आज ही नेम में चेंज करोगे, वो रेमेडी है. रेमेडी है तो आप अच्छे काम कर रहे हो, शुभ काम कर रहे हो, करो. ये कब कोई प्रारब्ध कहता है कि आप अच्छे काम करना बंद कर दो? नहीं, तो उससे चेंज हो जाता है ना, उससे चेंज हो जाता है. नहीं होता. और वो चेंज क्यों हो रहा है? वो चेंज इसलिए हो रहा है, वो आपके प्रारब्ध से ही आ रहा है. आपके प्रारब्ध में लिखा है अब आपकी सफरिंग ओवर हो रही है, नाउ दिस इज ओवर एंड नाउ यू जंप अहेड. ठीक है, क्यों PLR से मेरा सिर दर्द ठीक हो गया? आई फेस मे बी 30 ईयर्स तक मुझे सिर दर्द रहा. ठीक है, जब मैम ने सेशन किया था और मेरा सिर दर्द कंप्लीटली गॉन, जो किसी दवाई से नहीं गया, तो वो मेरा प्रारब्ध था. उतने दिन दर्द होना मेरा प्रारब्ध था. फिर ये भी मेरा प्रारब्ध था कि इस सेशन मैम के थ्रू मेरा होना था और सही हो गया. तो मेरा जितना प्रारब्ध क्या है, भोगने से खत्म होता है. तो जब उसका भोगना ओवर हो जाता है तो आपको कोई ना कोई इलाज मिलेगा, आपके लाइफ में आएगा और आप आगे बढ़ जाओगे. ये किसने कहा कि पूरी जिंदगी उस भार को ढोना है? मैम ने ही कई बार एग्जांपल दिया. इवन आपको वो उम्र कैद भी 20 साल की होके 14 ईयर्स में आप फ्री हो जाते हो. तो ऐसा नहीं है, प्रारब्ध बिल्कुल खत्म नहीं होता ये भी. और अभी एक मोमिता ने एक अच्छा पॉइंट बोला कि हाँ, पूजा पाठ करने से और ऐसे. अरे भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक में बोला है, मेरे शरण में आ जाओ, तुम पापी से भी कितने पापी हो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा. ठीक है, अभी जैसे बारी बार श्री लक्ष्मी पूछ रही है, देयर आर रेमेडीज, इन चीज की रेमेडीज है. यही है, भक्ति मार्ग में जाओ, कर्म योग में जाओ, भक्ति योग में जाओ, आपका सारा प्योरिटी ऑफ माइंड, यहाँ से सारा कर्म भी धुल जाएगा. संचित कर्म तो पूरे ही खत्म हो सकते हैं और प्रारब्ध जितने हैं वो भुगत के आगे जा सकते हैं. इट इज अप टू यू. भगवान की शरण में जाओगे तो उन्हीं का तो ये सारा यूनिवर्स है, सब कुछ मिल सकता है. Uma ji, let's take the example of let's say Mirabai. Mira got married, correct? Her duty was as a wife to satisfy her husband. Did she do any duty that a wife could have done? No.
all the time she was only doing bhakti. तो कोई और ये सोचेगा कि she was not a good wife. She has not satisfied her husband, not done anything for the community or for the kingdom, है ना? जो और wives करती थी, खाना बनाना ये वो सब जो भी है, नहीं किया ना उन्होंने. But like Shakuntala is saying, she went into the shelter of Lord Krishna. तो उन्होंने जो छोटी छोटी चीजें उन्होंने नहीं की थी, that is not counted as what to say, anything negative. Yeah. What are you doing? उसका स्तर कितना ऊंचा है? The action that you do vis-a-vis the action that you don't do. उसका एक मापदंड होगा ना? Everything cannot be counted at the same level. बस दिमाग में यही आ रहा था. तो ये हमारे लिए important है. Let me end with a nice story. Thank you so much. Okay, once there was a king. ये जो शकुंतला ने इतना beautifully सब explain किया, एक बहुत सुंदर कहानी में है ये. Once there was a king who ordered 3 of his ministers to take a bag and go to the forest and fill the bag with fruits. The first minister thought that since the king has ordered for collection of fruits, he must collect the best fruits in the bag. The second minister thought that since the king is a very busy person, he may not even look thoroughly in the bag. And so what has been collected? So he collected whatever he could lay his hands on. Thus his bag was filled with a mixture of good and rotten fruits. The third minister thought that the king would see only the external bag, कि कितनी बड़ी है bag, right? So he filled the bag with dry leaves and dust. All the 3 ministers came back. Second. All the 3 ministers. Wait a minute. Okay. So all the 3 ministers came back to the court with their respective bags, having executed the order of collecting the fruits. The king, without even seeing what their bags contained, just ordered that now the 3 ministers must be sent to separate jails for 3 months, where they will not be provided with any food, and they were only allowed to carry the respective bags wherein they had collected the fruits. The first minister could spend 3 months in the jail by eating the very nice fruits he had collected. The second one could survive for some time with the good fruits, but later on he developed diseases because he was eating rotten fruits. And the third minister had nothing to eat and hence could not survive. The moral of the story is, from the above story, we understand that we have to undergo the consequences of our own activities. You will be suffering your own reactions after your karmas. Any single karma you perform, you have to suffer for it. Good and bad, everything, you have to have this reaction. So don't doubt about it. Karma theory ko aap doubt nahi kar sakte. So this was a lovely story. I said I must share it with you. So karma phal, और ये आप ही ने किया, आप ही का action, आप ही का action का consequence. Correct? So the action is in your hands, and the result of the action, what you will suffer, is also in your hands. So God को blame मत करिए कि oh, he's making me suffer. नहीं, he doesn't have time to do all that. Correct? So thank you, Shakuntala. It was a wonderful talk, and I think we all really enjoyed it. So thank you.